The car has been superbly reliable over all these years. If I leave the throttle completely, it will just come to a halt here on this uphill section और वो पीछे जाना start कर लेती है गाड़ी. If they launch the Triber with the 1-liter turbo petrol engine, that will add some much needed life to this car. This Renault Triber has been a part of the MotorBeam long-term fleet for a little over 2.5 years now. Yes, we got this car towards the end of 2020, and in all these years, we have driven this car for 14,500 kilometers. We got the car brand new. Right now, the order stands at 14,600 kilometers. तो कैसा रहा long-term experience Renault Triber के साथ? We'll discuss that in detail today. What are the issues that we faced in the Triber? इतने साल में गाड़ी में क्या क्या दिक्कतें हम लोग को देखने मिली? We'll discuss that. So first of all, the car has been superbly reliable over all these years. Of course, there have been a few minor niggles. First of all, the car takes really long to start at times. So press the start stop button. एक बार दबाओ गाड़ी start हो जाती है. But a lot of times it takes around 10 to 15 seconds to start this car. Secondly, with this smart key, we face the battery issue a lot of times. तो इसकी battery बहुत बार dead हो गई थी. Sometimes the key was also not recognized by the car, and because of that, starting the car became an issue. We also faced an issue once where the starter of the car gave up completely and the car was not able to start at all. गाड़ी automatic है तो we could not push start it also, and eventually we had to get it towed. But Renault की service काफी अच्छी थी and they resolved the issues very quickly. Apart from that, another niggle with the car is the fact that the reverse camera takes too long to start. गाड़ी को आप रिवर्स में स्लॉट करोगे उसके 5-7 सेकेंड बाद रिवर्स कैमरा ऑन होगा, तब तक आपने ऑलरेडी हाफ टर्न ले लिया होता है. सो दीज आर सम ऑफ द माइनर इश्यूज दैट वी फेस्ड विद द ट्राइबर. Another small issue with the car is that these door locks are a little delicate, and in the last 2.5 years we actually broke 2 of them, and these are new units. The AC performance is brilliant in a word. AC बहुत जल्दी chill कर लेता है पूरे cabin को. In fact, even at blower speed number 1, it feels really cold. Of course, ये गाड़ी में आपको automatic climate control नहीं मिलता. You get only manual AC, but the AC performs really well under our hot climate conditions. So the Renault Triber is a 7-seater, but today 5 people from the MotorBeam team are in the car, including me, and हम लोग जा रहे हैं कोई hill station पे. It's going to be a tough uphill from here, but उसके पहले before we conquer that thing, आप लोग से बताओ, what do you guys think about the Triber? You guys have traveled in it for a long time. बताओ पहले भाई तुम लोग. The car is good actually. इधर-उधर city rides के लिए and all for the shoot purpose बहुत helpful रहा है. And the rear seat to middle में it's just 2-point seat belt. But then yeah, it's good. Headroom भी अच्छा है. बस मेरे को पैर इधर रखने के टाइम एक पैर इधर रखना पड़ता और एक पैर उधर रखना पड़ता. तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है वहाँ पे. अथर्व तुम बताओ कैसा था एक्सपीरियंस? गुड कार, काफ़ी स्पेशियस है. पीछे आराम से अगर एडजस्ट करके बैठे तो बैठ सकते हैं. बाकी इट्स कंफर्टेबल. How was the AC performance at the back? द AC वाज गुड. इट वाजंट चिली बट ऐसा विंड ब्लास्ट अच्छा था, बट इतना कूल नहीं कर रहा था. अच्छा, फैजल टू तुम बताओ. शूट के लिए तो मस्त था. लेफ्ट टू राइट मूव करने भी अच्छा था. खाली ये ट्रैकिंग के टाइम में थोड़ा दिक्कत होती थी विंडो खोलने में. अच्छा, हाँ बताइए कैसा था एक्सपीरियंस? गाड़ी अच्छी है नो डाउट, बट अभी जब मुझे लग रहा है जब हम लोग चढ़ने वाले हैं तो मुझे अभी से डर लगना शुरू हो गया है कि ये चढ़ नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ तक आते आते जो मैंने महसूस किया, जो फील किया है, अंडर पावर्ड फील होती है ना थोड़ी. और ऐसे भी मतलब फ्लाईओवर पे भी कहीं चढ़ रहे होते हैं तो समझ में आ जाता है कि अंडर पावर है. ये बहुत सारा शोर होता है इंजन के वहाँ से, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा घबराहट हो रही है. लेकिन देखते हैं, लेट्स सी अब आप कैसे लेके ऊपर चलते हैं. आवाज़ ज़्यादा आती है, परफॉर्मेंस थोड़ी कम होती है, तो वही दिक्कत है. बाकी तो गाड़ी एकदम सॉर्टेड है. यस. So now the uphill section has started. हम लोग जा रहे हैं, गाड़ी चल रही है obviously, but the lack of power can be felt here. काफ़ी स्लो रफ्तार से चल रही है गाड़ी ऊपर. AC सब बहुत बंद कर दिया हम लोग ने ऑलरेडी, बिकॉज उसे थोड़ा मतलब जो 1-2 एक्स्ट्रा हॉर्स पावर गाड़ी में खुल जाए. बट द थिंग इज कि अगर आप फ्लो में चला रहे हो, इट विल क्लाइंब ऑफ कोर्स, बट द पेस विल बी वेरी स्लो. इसमें बाई चांस आपको किसी को ओवरटेक करना है, बीच में हमने रोक दी गाड़ी और फिर वापस आपको चढ़ानी है, तो थोड़ी दिक्कत होती है. अभी देखो रिवर्स पीछे जा रही है गाड़ी. लोड कंट्रोल है कि नहीं इसमें यू कैन सी द क्रीप फंक्शन. बहुत स्लो ऊपर जा रही है गाड़ी. यू हैव टू प्रेस द थ्रॉटल मोर देन 50%, तो थोड़ी ऐसे पेस पकड़ती है गाड़ी. इफ आई लीव द थ्रॉटल कम्प्लीटली, इट विल जस्ट कम टू अ हॉल्ट हियर ऑन दिस अपहिल सेक्शन, और वो पीछे जाना स्टार्ट कर लेती है गाड़ी. तो ये यहाँ पे मतलब थोड़ा लगता है कि एक्स्ट्रा पंच होता तो काफ़ी अच्छा हो जाता, बट it's going really slow, really slow. I have pressed 20% throttle right now. इतनी slow चल रही है गाड़ी.
इससे अच्छा तो मैं चल के ही चला जाऊँ। ओ भाई ऐसे चल के चले जाओगे, हमारा क्या होगा? ऐसा ना करो यार, हमें गाड़ी चलाने नहीं आती। ओ भाई अरे भाई ऐसा ना करो भाई, घर जाता है। इधर What is the real world mileage that we got from the Triber long termer? Now this 1 liter 3-cylinder engine isn't exactly fuel efficient. The ARI claim figure is 18.2 kilometers per liter for the AMT that we have, but in reality the minimum that we got was 9 kilometers per liter and the maximum that we got was just 12 kilometers per liter, and the average was always hovering around the 10 kilometers per liter mark, which means in 14,500 kilometers हम लोग ने almost 1.4 lakh का petrol ये गाड़ी में भरा है. Also you might think that 14,500 kilometers is a little too less for a car that has been with us for 2.5 years, but the thing is that almost every week we get so many different cars, तो सब गाड़ियाँ चलानी होती है, and the Triber was actually our support car on 90% of the shoots. How is the performance of the Renault Triber? अब यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है. This car gets a 1 liter 3-cylinder petrol engine naturally aspirated जो बनाता है 72 horsepower and 96 Newton meters of torque. Power and torque figures are really low, not just on paper but in terms of real life performance also, because this car just feels so lazy to drive. मतलब अगर आपको नॉर्मल क्रूजिंग करनी है, कम्यूटिंग करनी है तो ठीक है, ये इंजन थोड़ी आवाज करता है, थोड़े वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, बट इफ यू वांट टू प्लान क्विक ओवरटेक्स ऑन द हाईवे, आपको थोड़ी अग्रेसिवली थोड़ी फास्ट चलानी है, देन दिस कार इज नॉट मेंट फॉर यू. नाउ अ पर्सन लाइक्स मी यूजुअली enjoys driving each and every car, right from a Maruti Alto to a Maserati Quattroporte, but the Renault Triber is one car which actually feels very boring to drive. ये गाड़ी का काम वही है, कम्यूटिंग आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी बहुत अच्छे तरीके से लेके जाएगी, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट एनी टाइप ऑफ एक्साइटमेंट फ्रॉम दिस कार. इंजन जस्ट अबाउट ओके है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस. माइलेज भी ओके है, मतलब 10 की माइलेज आपको मिल जाएगी. एंड रेनो ने एक्चुअली कहा था कि वो ये गाड़ी में टर्बो पेट्रोल इंजन लॉन्च करेंगे. दे वर सपोज टू लॉन्च इट अ कपल ऑफ इयर्स बैक इटसेल्फ, द सेम इंजन फ्रॉम द काइगर एंड द निसान मैग्नाइट, बट ट्राइबर टर्बो पेट्रोल का नामो निशान अभी तक तो हम लोग ने देखा है नहीं. सो आई रियली होप दे लॉन्च इट सून, बिकॉज परफॉर्मेंस इज मच नीडेड इन अ 7-seater, बिकॉज दिस कार रियली स्ट्रगल्स व्हेन देयर आर सो मेनी पीपल सिटिंग इन द कार एंड यू आर ट्राइंग टू गो अप हिल ऑन अ घाट सेक्शन. ये गाड़ी मतलब काफी स्ट्रगल करती है, तो वो थोड़ा अपेरेंट हो जाती है इसकी परफॉर्मेंस. इफ दे लॉन्च द ट्राइबर विद द 1 liter टर्बो पेट्रोल इंजन, दैट विल एड सम मच नीडेड लाइफ टू दिस कार, बट ऑफ कोर्स दैट इंजन आल्सो कंज्यूम्स अ लॉट मोर फ्यूल, तो माइलेज उसमें कम हो जाएगी, लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ी तो अच्छी हो. सो आई थिंक दे शुड ऑफर इट एज एन ऑप्शन एटलीस्ट ऑन 2 variants, RXT and RXZ. So that's about it in terms of performance. आपको 0 to 100 टाइमिंग में आपको अभी जस्ट दिखा देता हूँ. You can see that because the engine is lazy, that coupled with the slow AMT is what makes the Triber quite slow in terms of outright acceleration. How is the comfort of the Triber? I think comfort is top notch for a car that costs roughly around 10 lakh rupees. Renault ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इसके इंटीरियर को इंजीनियर किया है. स्पेस मैनेजमेंट इज क्वाइट नाइस. द सीट्स आर ओके इन टर्म्स ऑफ द सपोर्ट दे ऑफर, बट लॉन्ग ड्राइव्स पे वैसे कोई मेजर दिक्कत आती नहीं है. द फ्रंट सीट्स आर फिक्स हेडरेस्ट, यहाँ पे एडजस्टेबल होना चाहिए था. द रियर सीट्स गेट 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट. मिडिल पैसेंजर को हेडरेस्ट नहीं मिलता. सैड पार्ट इज कि आगे भी आपको आर्म रेस्ट नहीं मिलता, पीछे भी आपको आर्म रेस्ट नहीं मिलता. सो दिस इज समथिंग दैट रेनो शुड हैव आइडियली ऑफर्ड. द सीट कैन बी रिक्लाइंड, तो वैसे आप इसमें आराम से ट्रैवल तो कर सकते हैं. एंड द थर्ड रो इजंट वेरी स्पेशियस, तो ठीक ठाक है मतलब शॉर्ट ड्राइव्स के लिए. बट वॉट वी हैव डन इज दैट वी हैव फोल्डेड इट कम्प्लीटली, एंड आई थिंक 2.5 years में एक ही बार उसको यूज़ किया है. हम लोग ने हमेशा उसको फोल्ड करके रखा है टू कैरी ऑल द शूट रिलेटेड लगेज. यू नो वॉट इज माई फेवरेट बिट इन द ट्राइबर? दिस कूल्ड स्टोरेज बॉक्स ओवर. इसको खोलते यू जस्ट सी द स्टोरेज कैपेसिटी, कितना कुछ इसमें फिट आ जाता है. 1 chocolate, 1 coffee, 1 more coffee, 1 soft drink, 1 more chocolate, 1 more milkshake types, 1 water bottle and 1 more water bottle. इतना कुछ इसमें फिट आ जाता है, and this is cooled.
Well, unfortunately, it is not a driver's car. It is meant for people who want to commute from point A to point B or who want to travel in space and comfort. उनके लिए गाड़ी है, लेकिन enthusiasts के लिए ये गाड़ी नहीं बनी है. So, for people who want a commuter on a budget, this is for you. One more thing I want to add that this car has amazing ride and stability. तो ride quality तो बुरे roads पे काफी अच्छी, high speeds पे भी काफी stable चलती है गाड़ी. Just like other Renault cars. Of course, Duster के level की इसमें आपको ride quality नहीं मिलती, लेकिन segment के हिसाब से, price point के हिसाब से बहुत ही बढ़िया राइड क्वालिटी इसमें आपको मिल जाती है. सो दैट इज नॉट अ कॉम्प्रोमाइज एट ऑल विद दिस कार. स्टीयरिंग भी काफी लाइट इनफ है, टर्निंग रेडियस छोटा है, सो ड्राइविंग दिस कार इन टाइट स्पॉट्स इज इजी. एंड द गुड पार्ट इज दैट दिस कार हैज अ 4-star सेफ्टी रेटिंग फ्रॉम ग्लोबल एनकैप. तो ये सब चीजों में रेनो ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है. So which variant of the Renault Triber should you buy? अब ये गाड़ी में आपको 4 वेरिएंट्स मिल जाते हैं, RXE, RXL, RXT and RXZ. Now the RXE variant is the base variant, सबसे सस्ता वेरिएंट है, लेकिन it has no features at all. उसमें मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ गाड़ी मिल जाती है, अंदर कुछ भी नहीं मिलता फीचर. सो दैट इज़ नॉट अ रिकमेंडेड वेरिएंट. उसके ऊपर आता है RXL. RXL हैज़ सम बेसिक फीचर्स, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें भी मिसिंग है. सो वी डोंट रिकमेंड दैट वेरिएंट ऑल्सो. फिर आता है RXT एंड RXZ. The car which we have is the RXZ variant, which is also the top end variant and the most recommended variant of this car. अगर आपका बजट इतना ज़्यादा नहीं है, then you can cut down on 70,000 rupees by buying the RXT variant. RXT में भी आपको सभी essential चीज़ें मिल जाती है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता उसके ऊपर. So RXT and RXZ are the most recommended variants of the Triber. अब इसमें मैनुअल AMT दोनों चीज़ आपको मिल जाती है. You can buy the manual if you want. अगर आपको मैनुअल चलाने का शौक है, buy the manual. But if you're buying this car for city commuting, अगर आपको कन्वीनियंस चाहिए ऑटोमेटिक का, buy the AMT. उसका प्रीमियम सिर्फ 60,000 रुपीज़ है, which I think is worth it. Now AMT की जो परफॉर्मेंस कैसी है वो तो अलग बात हम लोग ने ऑलरेडी कर ली है. It is not a very quick AMT, but कंफर्ट के हिसाब से ठीक ठाक है. So buy the AMT if your budget allows. इट इज टाइम फॉर अ कॉम्पिटिशन चेक. रेनो ट्राइबर कौन सी गाड़ी के साथ compete करती है, या फिर इसके बदले आप कौन सी गाड़ी कंसिडर कर सकते हैं. नाउ दिस कार डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट राइवल, लेकिन अगर हम अफोर्डेबल 7 सीटर्स की बात करें, यू हैव द LXI वेरिएंट ऑफ द अर्टिगा. आपको 10 लाख रुपए में मिल जाएगा ट्राइबर के बजट में. दैट इज द बेस मोस्ट वेरिएंट ऑफ द अर्टिगा, लेकिन उसमें आपको एसेंशियल चीज़ें मिल जाती है. एंड ओवरऑल अर्टिगा इज अ बेटर प्रोडक्ट, ज़्यादा बड़ी है और उसमें आपको ज़्यादा पावर भी मिल जाता है, काफ़ी अच्छा इंजन मिल जाता है. इफ़ यू बाय द हायर वेरिएंट्स ऑफ द अर्टिगा, वो आउट ऑफ बजट जाएंगे, लेकिन फॉर द प्राइस ऑफ द ट्राइबर यू कैन गेट अ 4-year-old अर्टिगा इजीली. अगर आपको कोई और गाड़ी चाहिए सेकंड हैंड आपको एक्सप्लोर करनी है, देन यू विल गेट द ओल्डर टोयोटा इनोवा ऑल्सो इन दिस बजट. 10 साल पुरानी इनोवा आपको इसमें मिल जाएगी, लेकिन बड़ी गाड़ी है, लेकिन हाँ एज फैक्टर भी इसमें आ जाता है. Talking about the C3 Aircross, that is also a small 7-seater, लेकिन that car will have only one variant. उसमें turbo petrol engine भी आ जाता है, and eventually it will be priced a lot more than the Triber, तो वो भी थोड़ी out of budget हो जाएगी. तो मैंने आपको डिटेल में अपना एक्सपीरियंस बता दिया विद द रेनो ट्राइबर लॉन्ग टर्मर. नाउ इट इज टाइम फॉर द रिपोर्ट कार्ड. ऑन द डिजायरेबिलिटी फ्रंट दिस कार स्कोर्स 1 out of 5. ऑन द स्पेस एंड कंफर्ट फ्रंट दिस कार स्कोर्स 6 out of 5, बिकॉज बहुत ही बढ़िया स्पेस मैनेजमेंट और कंफर्ट इसमें आपको मिल जाता है. इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ये गाड़ी को मिलते हैं 2 stars out of 5. In terms of mileage, you get 3 out of 5. And in terms of the value for money factor, I give this car a rating of 4 out of 5. तो ये था मेरा एक्सपीरियंस विद द रेनो ट्राइबर इन 2.5 years ऑफ यूजिंग इट. अगर आपके पास भी रेनो ट्राइबर है, यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस, एनी पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रॉम योर साइड, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में.